Very good evening to all my students. Students who are participating in today's class will have to take care of one thing, that if you are able to solve this unseen passage, believe me, I'll repeat, if you people are able to solve the unseen passage that is coming in front of you all in just few seconds, that means you have a good command over it. What we have seen in the recent few months, in the past few months, that students are able to solve functional grammar, they are able to solve grammar based questions, but the fact remains that when it comes to unseen passage, it has turned out to be the toughest part. So class, without wasting time, I'm about to start the session. You will have to be very careful in reading each and every line of the passage. सबसे पहले तो आप लोग एक काम करिए, ये रहा आपके सामने अनसीन पैसेज। क्या आप सारे बच्चों को ये अनसीन पैसेज नजर आ रहा है? यस और नो? यस सर। यस सर। अच्छा, यस सर। ओके, ऐसा तो नहीं कुछ छुप रहा है, कोई वर्ड? आई होप ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड इज विजिबल, राइट? यस सर। Very nice, very nice. So please take a screenshot of this. Read the passage given below. It starts from have you ever failed and then goes down to help you today. Help you today. समझ गए? चलिए जरा। सो आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आप लोग क्या कर सकते हैं, दैट मोबाइल फोन पे अनसीन पैसेज आप ओपन कर लीजिए। मैं फिर से ये पढ़ने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू रीड इट। रीड द पैसेज गिवन बिलो। हैव यू एवर फेल्ड एट समथिंग so miserably that they thought of attempting to do it again was the last thing on your mind? Sorry, that the thought of attempting to do it again was the last thing on your mind. If your answer ... to help you today. So the first question coming up in front of you all is, अब बेटा ये अनसीन पैसेज हट जाएगा। ये रहा पहला क्वेश्चन। फटाफट आ जाइए जरा। अनसीन पैसेज पे आपका ध्यान होना चाहिए, और ये क्वेश्चन तो मैंने सामने ही ओपन करके रखा है। Yes, the first question is, the reason why you are not a robot is that, मैंने अनसीन पैसेज आप लोग को दिखा दिया है, तो अब मैं उसको नहीं दिखा पाऊंगा। आई एम सॉरी। सबने स्क्रीनशॉट ले लिया अनसीन पैसेज का? यस। Yes sir, very nice, good job. Start finding the answers. The reason why you are not robot, the easiest way to find this answer is, straight away what you can do is that straight away you can find this word in the unseen passage. Okay, and I get to see that खुशी ने आंसर ढूंढ लिया है, लेकिन खुशी प्लीज रीचेक योर आंसर वंस अगेन। ये देखिए जरा, मैं फिर से अनसीन पैसेज दिखा रहा हूं आप सब लोगों को। एंड माइंड इट, डोंट डेयर टू लॉग इन इवन अ मिनट लेट व्हेन इट कम्स टू तरुण सर्स क्लास। समझ गए नवाबो? ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये रहा आपके सामने अनसीन पैसेज। बच्चों फटाफट
Okay, I'll give you only 10 seconds. Screenshot of this unseen passage. My God, it has been so difficult to just set this all. चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया और पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने डिस्प्ले करने जा रहा हूं. इस स्क्रीनशॉट को आप अपने मोबाइल फोन पे खोल लेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा. There are many students who have started to answer. Nikhil Kumar says D. Khushi Wahana says A. अच्छा, वाह वाह वाह, very good. Sir, option D. Option D, D for dog. Yes, sir. You have limitations. अच्छा, तो ऑप्शन डी वाले कुछ ज्यादा है, लेकिन अनुमोदान इज सेइंग बी. ओ माय गॉड, दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि अनसीन पैसेज में मल्टीपल ऑप्शंस आ गए. एक बच्चे ने बोला ए, एक बच्चे ने बोला बी, एक बच्चे ने बोला डी. दैट इज समथिंग हॉरिबल. सो दिस मीन्स दैट यू पीपल आर नॉट फोकसिंग टुवर्ड्स द रीडिंग पार्ट. आपको एज इट इज नहीं मिलेगा बच्चों. प्लीज फोकस, प्लीज फोकस. So B. Yes, I think so. थोड़ा सीख रहे हैं बच्चे. ओके, सो बेटा आंसर इज, अभी आंसर से पहले हम लोग देखते हैं, फिर से अनसीन पैसेज चलते हैं. निमित, एनी आंसर फ्रॉम योर साइड? So I'm reading the passage only. यू आर रीडिंग द पैसेज. इसको बेटा जल्दी करिए, इसको जल्दी करिए. मैं भी जरा अपने मोबाइल पर ये अनसीन पैसेज ओपन कर लेता हूं. Sir D, you have limitations. You have limitations. अब जरा देखते हैं कि आप लोग ने कैसे पढ़ा एंड हाउ कम आई रीड इट. ठीक है, सबसे पहले आई फाइंड आउट रोबोट, द वर्ड रोबोट, कि रोबोट जैसे वर्ड्स हैं कहां. Have you ever failed at something so miserably that the thought of attempting to do it again was the last thing on your mind? If your answer is yes, then you should understand that you are not a robot. Unlike robots, we human beings have feelings, emotions and dreams. चलिए जरा थोड़ा बहुत हिंट मिला, समझे ना, थोड़ा बहुत हिंट मिला. We all are meant to grow despite our circumstances and limitations. आप लोग ने जैसे ही अगली लाइन देखी उसका आंसर ढूंढ डाला. वाह 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 वाह. लेकिन बहुत ध्यान से हम लोग आगे पढ़ेंगे. फ्लरिशिंग एंड ट्राइंग टू मेक आवर ड्रीम्स कम ट्रू feels great when life goes our way, but what happens when it does not? What happens when you fail despite all your hard work? तो मेरे बच्चों, मेरे देखने का जो आंसर है कि the reason why you are not robot is that you have limitations. नहीं, आंसर इज बी. शायद एक ही बच्चे ने आंसर दिया. फेलियर एंड सक्सेस कैन अफेक्ट योर इमोशंस. अरे अगर आप अनसीन पैसेज ना भी पढ़ते, रोबोट हैज नो इमोशंस. दिस इज द रीजन यू आर नॉट अ रोबोट. अगर आप अनसीन पैसेज ना भी पढ़ते तो भी आप लॉजिक लगा सकते थे एक बार. The reason why you are not a robot, you are human beings. You are actually human beings. और ये साफ साफ लिखा भी है अनसीन पैसेज में. कोई ढूंढ पाएगा इसको कहां लिखा है ये? The reason why you are not a robot because you have nothing to do, sorry, you have everything to do with failures and success. ये देखिए, एक जरा सा ये वर्ड है. क्या बात है, आगे क्यों बढ़ गए जब पीछे आंसर लिखा है? क्या लिखा है? यस और नो? जल्दी पढ़ो इस लाइन को, फटाफट मैं आगे बताऊं. अरे मत बोलो भैया, ऐसा मत बोलो, तुम्हारा नेटवर्क कमजोर है. खटाक से खोल दी ऑडियो. दूसरा कोई बोलो. Unlike robots, we human beings have feeling, emotions and dream. एक्सीलेंट. और ये देखो साफ साफ ये रहा आंसर. ये लो, बस इससे ज्यादा नहीं समझा सकता. ये कोई चैप्टर नहीं है बच्चों.
जो मैं समझाने लगूं। ये मेरा तरीका है देखने का अनसीन पैसेज को। आई डोंट नो हाउ यू पीपल, ये कहां से मिल गया आपको? लिमिटेशंस। सो आंसर बी इज करेक्ट। द एंटायर क्लास was incorrect. I am shocked. क्वेश्चन टू, सॉरी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन करना, ये वाला क्वेश्चन करना। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। कोई पढ़ दो प्लीज, रीड इट आउट फॉर मी। What is the tone of the following context? Falling down or failing is one of the most educational, empowering, and essential parts of living a successful and fulfilling life. अच्छा, Options: humorous, optimistic, horrifying, solemn. बस 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 बस। व्हाट इज द टोन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेक्स्ट? फॉलिंग डाउन और फेलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एजुकेशनल, एम्पावरिंग एंड एसेंशियल पार्ट्स ऑफ लिविंग। अरे अनसीन पैसेज में जाने की जरूरत नहीं, ये सिनोनिम पूछ रहा है आपसे इनडायरेक्टली। सिनोनिम्स आर दोज वर्ड्स व्हिच हैव अ सिमिलर मीनिंग, व्हिच हैव अ सिमिलर मीनिंग। ढूंढ निकालो। Optimistic. Optimistic. अच्छा, ओके ओके, रुक जाओ जरा। क्या बात है बेटा, पहला आंसर। मार्क योर सेल्फ एज 1 मार्क अब स्कोर किया। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? Positive thinking. ऑप्टिमिस्ट, ही इज एन ऑप्टिमिस्ट। अच्छा, किसी ने कहा पॉजिटिव थिंकिंग, वेरी नाइस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिमिस्टिक? जब ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग तो पता नहीं कैसे सही कर दिया तुम लोग ने। द वन हु इज वेरी होपफुल, समझ गए? एंड हु हैज हाई एक्सपेक्टेशंस, बिल्कुल वैसे ही मिलता जुलता है। ह्यूमरस का मतलब होता है फनी, हॉरिफाइंग का मतलब होता है हॉरर, सोलेम का मतलब होता है स्मूथ। ये तीनों नहीं मैच कर रहे हैं। बचा कौन सा? ऑप्शन बी। ओके, चलो ये हटा, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। Which of the following is relevant for the title of the passage? Oh my God, गए काम से। You'll have to read the entire passage. पूरा पैसेज पढ़ो इसके लिए। लेकिन मेरे पास आंसर मेरे को जल्दी से मिल जाएगा। मैं पहले 2 लाइन ही पढ़ के आंसर बता सकता हूं। मैं पहले 2 लाइन, पहली बात तो ये कभी नहीं होगा। जिन्होंने ये सोच लिया, मैं आपको पहले से हिंट दे दूं, ये इस तरीके का टाइटल कभी नहीं होता, वर्सेस एंड ऑल। इसको तो सबसे पहले हटा देना। Sir D. अच्छा, निमित का ऑप्शन डी आया। वेट, आई विल वेट फॉर अदर स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे खुद अनसीन पैसेज पढ़ना है जाके। रुको जरा, मैं एक बार नजर मार लूं कौन कौन से पॉइंट्स है, फिर मुझे पीछे जाना पड़ेगा। ड्रीम्स ऑलवेज कम ट्रू, फेलियर एंड ग्रिट। अच्छा, गो हैंड इन हैंड, फॉलिंग डाउन एंड गेटिंग अप। हो। जितने भी डी वाले बच्चे हैं वो बोलना शुरू कर दें, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सभी मिल गया मुझको। Study. बेटा मुझे मिल गया, मुझे मिल रहा है फॉलिंग डाउन। बी और कुछ बच्चे, कुछ ज्यादा ही बच्चे डी। आई एम सॉरी टू से, ये फेल, फॉलिंग मेरे को सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, वंस यू मार्क अ टाइटल related to unseen passage, my dear students, the number of words that are in maximum when it comes to unseen passage, you'll have to mark it as yes. और मेरे हिसाब से ये ऑप्शन सबसे ज्यादा बोला गया है। कौन सा? फॉलिंग डाउन एंड गेटिंग अप। ये मेरा ऑप्शन है और एकदम सही है। लिख लो जरा, ऑप्शन डी। केवल 3 बच्चों ने बोला ऑप्शन डी। ये रहा अगला क्वेश्चन। डैश वॉज क्रिएटेड आफ्टर मेनी अटेम्प्ट्स। ये कैसा क्वेश्चन है भी कि नहीं अनसीन पैसेज में? The light bulb. Light The bulb. light bulb. इतनी जल्दी? वेरी गुड। मेरे को तो इलेक्ट्रिसिटी नजर आ रहा था अनसीन पैसेज में। आई डोंट ट्रस्ट यू पीपल, मेरे को वापस जाना पड़ेगा, अरे बाप रे, इतने लंबे अनसीन पैसेज में ढूंढूंगा कहां से?
Sir, it's in The the third third paragraph, fourth point, or fifth line. Oh ho. fifth line. Arushi and Tanishq have done it. Light bulb towards creating the 100 of it. Oh ho. कुछ देखने की जरूरत नहीं. सब लोग कोई आंसर मिला है कि नहीं, कि ये भी आंसर नहीं कर पाए? लाइट बल्ब, राइट डाउन ऑप्शन बी. हाँ, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं. Which of the following sentences makes the correct use of grit? ये खासकर आईसीएससी और आईएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीबीएसई में भी आने लगा है. Sir, D. सीबीएसई में भी इस तरीके का क्वेश्चन आने लगा है. डी ऐसे लग रहा है निमित को पहले से ही अनसीन पैसेज मिल गया, इतनी स्पीड से तो आंसर D. दे रहे हैं. डी, दो बच्चों को डी तो D. ऑप्शन मिल गया है. वाह 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 वाह, समझे ना, बहुत बढ़िया. So D. डी. Sir, D. ओके, डी डी डी. अबे सब डी बोल रहे हैं तो आई थिंक सो मेरे को आगे बढ़ना चाहिए. रुको जरा. गेट रिड ऑफ दैट ग्रिट इन योर हाउस. अच्छा, अरे ग्रिट का मतलब बताओ पहले. ग्रिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रिट? बोलो. Perseverance. Perseverance is absolutely correct. And which of the following makes the correct use? हाँ, तो सब लोग डी बोल रहे हैं. डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. हर ग्रिट नेवर मेड हर गिव अप. समझ गए? द रोड हैड बीन कवर्ड विद ग्रिट. गलत. शी हैड अ बिट ऑफ ग्रिट. गलत. गंदगी गंदगी गंदगी. यहां पहले में लिखा है ग्रिट गंदगी, बी लिखा है ग्रिट गंदगी, सी लिखा है ग्रिट गंदगी, और डी यहां पर इसका मतलब डर्टीनेस से है ही नहीं. ये ग्रिट का मतलब होता है परसिवरेंस. एंड निमित इज एब्सोल्युटली राइट. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. और चैट बॉक्स इज एक्सट्रीमली एक्टिव. आई एम सीइंग योर ऑप्शंस. आप लोग अनम्यूट करके भी आंसर दे सकते हैं. ठीक है. Yes, class. To develop perseverance, one must. C. To develop Sir, C. perseverance. Sir, C. ओ, मल्टीपल ऑप्शंस कैसे आ रहे हैं अनसीन पैसेज में, मुझको समझ नहीं आ रहा है. अच्छा, Sir, B maybe. बी भी. ओह, Sir, A. ओ माय गॉड. ए बी सी डी. Sir, C. नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ. ए बी सी डी चारों ऑप्शंस आ गए. ये तो पहली बार ऐसा हुआ. Sir, C. चलो सी वाले ऑप्शन कुछ ज्यादा लोग बोल रहे हैं. सो आई विल हैव टू लुक इनटू इट. रुके रहो. टू डेवलप परसिवरेंस वन मस्ट. ओ माय गॉड. डेवलप परसिवरेंस. अब मैंने ये वर्ड पकड़ लिया है. अब मैं अनसीन पैसेज में जाऊंगा और मैं करूंगा क्या? परसिवरेंस जैसा वर्ड ढूंढूंगा. है भी कि नहीं. The fourth para. रुक जाओ. हाँ 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 हाँ. और परसिवरेंस नहीं मेरे को कहीं भी दिख रहा है. परसिवरेंस मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है? Sir, fourth para, second line. The Fourth. grit. Grit Sir, can grid be, means grit can be learned to help you become more successful. Perseverance can be learned. इसका मतलब grit का मतलब यहाँ perseverance. One of the techniques that help is mindfulness. Is a practice that makes an individual by bringing awareness. कुछ था कि नहीं awareness से related वहां? Mindfulness. To develop perseverance, Sir, one must option be.
वन मस्ट, एक सेकंड रुको, ये हटाओ, काटो इसको, ये हटाओ, ये हटाओ। सॉरी टू से बेटा, यही सही आंसर है। किसी ने नहीं बोला, मैंने तुरंत Okay, ढूंढ sir. लिया। बेटा मैं आप एलिमिनेट करना चालू करो, रिमेंबर दिस, एलिमिनेट करना चालू करो। बिकम मोर अवेयर कुछ लिखा ही नहीं है, वर्क हार्ड, सीक गाइडेंस, ये तीनों है ही नहीं, अल्टीमेटली सी आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये क्या आ गया, हाउ डज माइंडफुलनेस हेल्प, ये ढूंढ निकालोगे। हाउ डज B. माइंडफुल, Sir, बी, option B. एब्सोल्युटली, अभी अभी हमने देखा है ये दो वर्ड्स, और इतने जल्दी तो भुलक्कड़ हो नहीं कि एक बार अनसीन पैसेज देखो तो ये दोनों वर्ड्स भूल जाओ एकदम से। Noise of fears and doubts, option B is absolutely correct, and chat box inactive हो गया है, इसका मतलब बच्चे डिसइंटरेस्टेड हो गए हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ माय गॉड, गए काम से। अब ये फिर से वही रिपीट कर दिया है। फॉलिंग डाउन और फेलिंग is one of the most agonizing, embarrassing and scary human experiences. It means that, Sir, B. अरे मेरे को अनसीन पैसेज Sir, देखने की B. जरूरत ही नहीं पड़, ओके ओके ओके, तभी अच्छा सब लोग बी बोल रहे हैं, रुके रहो जरा देखें बी है भी कि नहीं। फॉलिंग डाउन, इसका मतलब द सेंटेंस इज नेगेटिव, मेरे को अनसीन पैसेज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉलिंग डाउन मेक्स अस एंग्री, सॉरी दैट्स अ कैजुअल सेंटेंस, स्टे पॉजिटिव एंड बी ऑप्टिमिस्टिक। फॉलिंग डाउन और फेलिंग इज वन ऑफ द मोस्ट एगोनाइजिंग, एम्बैरेसिंग एंड स्कैरी ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, इसका मतलब पूरा का पूरा सेंटेंस नेगेटिव है, और ये रहा पॉजिटिव वर्ड, इसको काट दीजिए। सेल्फ कंट्रोल पॉजिटिव वर्ड, बचा केवल एक ही ऑप्शन बी जिसमें नेगेटिव वर्ड्स भरे हुए हैं। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यस, आ जाइए इस वाले ऑप्शन पर। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली स्टेट्स द मीनिंग ऑफ सोशल इंटेलिजेंस, तुरंत मिल जाएगा ये तो, तुरंत मिल जाएगा ये तो। Sir, option B. यस क्लास, बताइए। Sir, B. Option B, B, B. Rest of you, no one is active in the chat box. Only one student, Anumodan, says D. अनुमोदान को ये सराउंडिंग्स सुनाई दिया, चलो देखते हैं जाके अनसीन पैसेज। कोई सी भी बोल रहा है, वाह बेटा, कोई सी, डी एंड बी, तीनों ऑप्शंस आ गए। अब तो देखना पड़ेगा कि क्या है सोशल इंटेलिजेंस का मतलब एज पर द पैराग्राफ। सोशल इंटेलिजेंस जैसा वर्ड ढूंढना पड़ेगा पहले। ओके, सोशल इंटेलिजेंस, ये रहा छुपा हुआ। The other six are curiosity, gratitude, optimism, self-control, social intelligence, and zest. Thomas Edison is an example of grit. What nonsense. तुम लोगों को कहाँ मिला? जबरदस्ती बोल रहे थे क्या? सोशल इंटेलिजेंस तो इनके साथ है, तो बच्चों क्या करें इसमें? When asked why he kept this statement, not only revealed great social intelligence, इसमें भी नहीं है। Self sabotaging feelings of failure, reflect on word. वाह, अब कोई नहीं बोल रहा है, इसका मतलब you did a guess work. Oh my God, what a tough unseen passage.
बेटा बोलो आंसर क्या होगा, मिला कि नहीं? अरे व्हाट इज द आंसर? चलो भाई तुम लोग सर्च करते रहना, मैं आंसर आप लोगों को बता दूं। राइट डाउन आंसर बी, नोइंग वन सेल्फ एंड अदर्स। आंसर बी, बाकी सारे आंसर गलत हैं। दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन आई एम हैविंग विद मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से ढूंढिए इस क्वेश्चन को। द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सी, ये ढूंढ निकालोगे, ये तो चुटकियों में ढूंढ निकालोगे। थॉमस एडिसन। वेरी इजी। और ये ऑप्शंस कैसे बकवास से हैं? पहले ध्यान देना कि थॉमस एडिसन इज द ओनली लिविंग कैरेक्टर, बाकी तीनों नॉन लिविंग थिंग है। बताइए जल्दी जल्दी। यस, थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड व्हाई आरंट अदर्स आंसरिंग? बाकी बच्चे क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं? ओके, the importance of perseverance and optimism for a successful and fulfilling life is explained using the example of, are you sure? अब हम समझे, it's not necessary that Thomas Edison ही हो। flourishing great limitations, अरे बेटा आंसर बोलो। सर थॉमस एडिसन। यही होगा। ए ही होगा, बिल्कुल सही। सर तो बेटा थॉमस एडिसन। okay, you can recheck your answer. This is the reason I kept on repeating. And today's last question is in front of you all. What is the message conveyed in the last paragraph of the passage? सबसे पहले अगर आपको ये वर्ड नहीं पता, self sabotaging feelings, sorry to say no one will come and help you over there. Self sabotaging feelings of failures is actually retrospection. It means looking into the past, looking into yourself and understanding that why you failed. अब शायद आप लोग ढूंढ सको कि इस स्टैंजा 5 का एक्सप्लेनेशन क्या है। चलो आई एम गोइंग बैक टू द अनसीन पैसेज, देखें क्या है। What is the message conveyed in the last passage? Always aim for the best. गलत गलत, ये पक्का 100% बता दूं कि ये दोनों ऑप्शन होंगे ही नहीं। सी। Sir, option C. I am damn sure। और सोशल इंटेलिजेंस का तो कोई मेंशन ही नहीं है। This is the way how to solve unseen passage। I am damn sure कि यही होगा, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। Okay class, so tomorrow we would be solving this unseen passage। देख लो तुम्हारे सामने क्या है, because we have done very few unseen passages। समझ गए?